Dear students, this video is on the concept of rational number. On the basis of the concept of rational number, we have an exercise 1.2 of chapter 1, class 9th. How numbers evolve from the primitive concept of natural counting numbers to whole numbers with the addition of the number 0, integers with the addition of negative numbers, and then rational numbers. Since rational numbers are closed under all four arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, and division, you might think that rational numbers finally represent a complete collection of numbers. We can add, subtract, multiply, and divide, and never have a problem representing the result. Yay! This is what the Greeks thought as well. That is, until they discovered an inconvenient truth: that there are certain types of quantities that cannot be represented by rational numbers. Nobody knows exactly who made this disturbing discovery. It may have been the great Greek mathematician Pythagoras, but legend has it was one of his students, who was subsequently killed for upsetting the apple cart with this discovery. Numbers were obviously a sensitive subject for the Pythagoreans. The proof of the existence of irrational numbers may have gone something like this. If rational numbers can represent any quantity, then they should be able to represent square roots. Now, the definition of rational numbers says that any rational number can be represented as the ratio of two integers. In other words, one integer which we will call p divided by another which we will call q. P over q is obviously a fraction, and like any fraction, we can write it in its simplest form so that the integers p and q have no common factors. We also know that since the square root of 2 is not an integer, the denominator q is some number other than 1. Now, since the square root of 2 and the quantity p over q are equal, then we can square them both and they will still be equal. The square root of 2 squared is 2, and the quantity p over q squared is p over q times p over q, or p times p over q times q. For this fraction to be equal to 2, we must somehow be able to reduce it to 2 over 1. But we already saw that q was not 1. So the only other way this fraction could be equal to 2 over 1 is to cancel out common factors in the numerator and the denominator. But we also said that p and q have no common factors. Therefore, there are no factors in the numerator that are the same as any factor in the denominator. So we can't cancel any factors, and there is no way that this fraction can be equal to 2. Therefore, this is an impossible situation. Our original assumption that the square root of 2 can be represented by the ratio of two integers must be wrong. The square root of 2 must be some value which is not a rational number. A number which is not rational is called an irrational number. So students, on the basis of the video, we learned that we have an existence of some different type of number, irrational number. So write down the definition of irrational number in your copy, right? Simple. Definition is nothing, just different statement नहीं है. जो rational number का statement है कि कोई भी number p upon q की form में लिखा जा सकता है मेरे पास में, इसका बस आपको reverse जो है वो यहाँ पे use करना है कि can not be written in the form of p upon q. पूरा statement वही है यहाँ पे, ठीक है? But we have some characteristics also. It means अगर हम rational number और real number को combine करेंगे, then we got another set of numbers that is known as real number. It means
रियल नंबर के अंदर हर टाइप का नंबर होता है आपका, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल, आइदर इंटीजर और आपका रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हर टाइप का नंबर उसके अंदर आपको मिलेगा, राइट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। रियल नंबर का जो कैपिटल लेटर है आर, वही हमने सिंबल यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक हमारा ये है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, नंबर लाइन पे उनकी एक यूनिक पॉइंट होगा, चाहे बेशक वो इरेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, बट ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। There are infinitely many irrational number between two irrational. जैसे रेशनल के बीच में बहुत सारे रेशनल्स थे, ऐसे ही दो इरेशनल के बीच में भी आप बहुत सारे irrational numbers find out कर सकते हैं, right? This is okay. Move on to our exercise. In first question, we have some statements. You have to identify which one is true or false, and you have to justify your answer also. On which basis you are saying that okay, this is wrong, this is right. Okay. So we have the first part. Every irrational number is a real number. In our last slide we have seen that, ठीक है, कि इरेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके आपका सबसे बड़ा जो सेट बना वो बना रियल नंबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। तो यही स्टेटमेंट मैंने अभी आपको दी भी थी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इट मींस all irrational is a real number. So this statement is true. Move on to second statement. Every point on the number line in the form under root m, मतलब ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, √2, √3, √5, ठीक है। बट आगे कंडीशन क्या लिखी है, जो m है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ, फ्रैक्शन या इरेशनल फ्रैक्शन हुआ या रेशनल नंबर हुआ, तो क्या उसको नंबर लाइन पे जगह नहीं मिलेगी। अभी हमने बच्चे डिस्कशन भी किया था कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनकी सबकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है आपका √2/3। ये आपका रियल नंबर है, नंबर लाइन पे भी जाएगा, लेकिन जो रूट के अंदर नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इट मीन जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर जो भी नंबर है आपका वो नेचुरल हो, ठीक है। हमारे पास और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। हाँ, पर 2/3 जो है वो आपका इरेशनल, सॉरी 2/3 जो है वो रेशनल नंबर जरूर है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, रेशनल भी कह सकते हैं। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज false. Yes, right. This statement is false. Move on to third statement. Every real number is an irrational. क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? सोच के देखिए जरा, कोई एग्जांपल लेके देखिए। ऐसे तो समझना थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। कोई एग्जांपल अपने दिमाग में क्लिक करिए कि वो रियल नंबर है पर क्या वो रेशनल नंबर है, आपको आपका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहली बात तो हमने ये चीज पढ़ी है कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1/2 ले सकते हो आप। 1/2 रेशनल है, रियल भी है, पर क्या ये इरेशनल है? नो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओके। -2, मुझे -2 इंटीजर है, रियल नंबर भी है। अब आप बताइए क्या -2 आपका इरेशनल नंबर है? नो, अगेन इट्स नॉट अ इरेशनल नंबर। तो व्हेन यू टेक एन एग्जांपल ना, तो जस्ट इट मेक यू अ वेरी क्लियर कंसेप्ट रिगार्डिंग दैट स्टेटमेंट whether it's true or false, right? So obvious, what we have conclude that कि it's a false statement. This is all about question number 1. In question number 2, वहां पे भी हमारे पास में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। Move on to question number 2.
इन्होंने क्या कहा है बच्चा, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इरेशनल, जितने भी स्क्वायर रूट है, ये रहा आपका स्क्वायर रूट का सिंबल। अब आप अपने माइंड में जरा सा इमेजिनेशन को थोड़ा सा जोर दीजिए कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखूं, आइदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आउटपुट होगा क्या वो आपका हमेशा इरेशनली आएगा? सोच के देखिए जरा। अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। जरा इस पे ऑब्जर्वेशन आप करिए थोड़ा सा। यस, आई थिंक आई गॉट योर आंसर। ठीक है, यू गॉट योर आंसर। 1 जो है इट्स अ इरेशनल, 2 अंडर रूट 2 irrational, under root 3 irrational, and what about under root 4? है ना, here some, यहाँ पे कुछ आपका ट्रिक यूज हो रहा है। ट्रिक क्या मतलब, सॉल्यूशन हम करते हैं उसको। ठीक है, तो लेट जस्ट अंडर रूट 4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इट विल गिव यू अ 2। 2 is a real number, it's a rational number, it's a natural number, it's a whole number. Is it a rational number? No, it's not a rational number. Irrational number. Okay? It means आपको सॉल्यूशन मिल गया बच्चा कि जितने भी स्क्वायर रूट में अगर हम पॉजिटिव नंबर मिलेंगे तो हमारा आंसर जरूरी नहीं है कि वो आपका इरेशनल आए। तो यही लैंग्वेज हमने यहाँ लिख देनी है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational. Move on to question number 3, and it's a very important question. Show that under root 5 represented on the number line. ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू द रिप्रेजेंटेशन हमें बच्चा इसमें काम करना है। कोई भी नंबर आपको दिया हो, इंस्टेड ऑफ रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 9, जो भी नंबर आपके पास है, कोशिश करिए ट्राई टू राइट दैट नंबर इन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। अगर मैं 5 को ऐसे लिखूं 4 + 1, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, आई जस्ट ब्रेक, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है उसको लिखने में। अब मैं इसे स्क्वायर में लिख सकती हूँ। 4 is the square of 2 and 1 is of course the square of 1, right? ये मैंने आपको इसलिए लिखा है यहाँ पे बच्चा कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो बेस की तरह काम करेगा और जो सेकंड नंबर होगा वो आपका परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। वी हैव सर्टेन स्टेप्स, follows those steps, right? Okay, and then you have to just do this representation on the graph paper, right? So first take your graph paper. So first step is to make a line. ये जो लाइन थी ना यहाँ पे 2, ये जो 2 आए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, मेरे पास 2 है, इट मीन्स मुझे एक नंबर लाइन चाहिए, उसमें एक लाइन चाहिए ओ ए जिसकी लेंथ होनी चाहिए। सो टेक अ लाइन, राइट, मार्क सम numbers on it, 0 1 2, मुझे 2 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 2 तक ही मार्क किए हैं। You can mark it as one more number extra, one more number on that line, it doesn't matter. Then initial point 0, उसको मैंने O से मार्क कर दिया है, एंड जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है 2, उसको मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो नाउ आई हैव OA ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स कह सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड स्टेप इज टू, मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कितने का होगा, जो यहाँ लिखा होगा, इट मीन्स 1। You have any choice, you can either draw the perpendicular direct by just your compass or either by just your protector। ठीक है, मैंने जस्ट एक आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये ग्रीन कलर की लाइन से आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है इसको भी आपको कुछ मार्क करना पड़ेगा, तो नेम द पॉइंट एज बी। नाउ जॉइन ओ बी, राइट, दैट्स योर ओ बी। ओके, अब क्या करना है बच्चा यहाँ पे आपको, नाउ यू जस्ट रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैंने भी आपको उसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज बताई दी है, सेम वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है जो ऊपर लिखा है। याद रखिए बच्चा,
ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था मुझे कि आपको इनिशियल थोड़ा सा करने के आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, ओ को मुझे यहाँ पे सेंटर लेना है। ये जो ओ बी मुझे यहाँ पे लेंथ दिखाई दे रही है, मैं इसके ऊपर अपना कंपास रखूंगी और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कंपास को ड्रैग करना है। द पॉइंट वेयर द कंपास टचेस, पेंसिल टचेस द नंबर लाइन, the point that point is represented will represent that point, that point will represent under root 5, right? So here is the compass. उसको फिर आपने ड्रैग करेंगे, आप उसको ऐसी एक आर्क आएगी आपके पास में, और जो आप टच कर रहा है ये आपका पॉइंट, दैट इज योर सी। तो ये जो ओ सी आपके पास में लेंथ आई है मेरे पास, दैट इज अंडर रूट 5। आई होप क्लियर होगा आपको सारा क्वेश्चन। ऐसे ही आप अंडर रूट 5 के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे अंडर रूट निकालने के लिए आ सकते, कोई भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।